بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد سوکی اور میرے نال لالا عزت خان۔ ناظرین، سٹوری سی ڈی اے دی کئی لوگوں نے کالاں آئیاں ہوں، فون تے اتنی لمبی گل بھی نہیں ہو سکتی حقیقت کے وے۔ او سوکی صاحب تسی سنٹری ورکراں نے بھی آواز بن دے ہو، سارے نہیں بن دے ہو۔ وہ 58 بندے پہ دسنے کہ جناب کو کٹ دیتے نے کی ہویا، لیکن مینوں یہ پتا کہ لالا عزت خان دے کول سارا کچھ پتہ ہو سی۔ یہ وجہ کی السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ لالا۔ لالا تہاڈا محکمہ بھی تقریباً 30-40 سال تساں تھے سروس بھی کیتی ہے جی جی۔ یہ کہ وقوع ہویا کہ جڑے 58 بندے نہ کہ مسئلہ؟ ملک صاحب، میں آپ کا اور آپ کا چینل کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور میں بھی بحیثیت ایک ٹریڈ یونین اور سی ڈی اے میں میرا زندگی گزارا ہے۔ بالکل۔ تو اور ان لوگوں کا مجھے بھی کالے آئے، چابار پروگرام کرتے اور آپ کو بھی بےتاش آئے، وہ کیڑے کراں لالا لوگ سارے خاموش ہے۔ تو آپ کے اس چینل کے وساست سے میرے چیئرمین سی ڈی اے سے خصوصی، بورڈ ممبران سے خصوصی، محسن نقوی صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے خصوصی درخواست ہے کہ ہمارے بات کو دوسرا طرف نہ لے جائے۔ ہم نے ان مزدوروں کے لیے، ان غریبوں کے لیے، ان 58 خاندان کے لیے بات کریں گے آئین کا، قانون کا، اور ان سے ایک اپیل اور ایک ریکویسٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ہمارا جو ناقص معلومات ہے اس کے قانون کے مطابق ہم بات کریں گے۔ جی نمبر 1 تو ہو گیا یہ بات۔ نمبر 2، آپ کے چینل کے وساست سے میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ سی ڈی اے میں بڑے بڑے کڑپین لوگ پھرتے ہیں، بڑے بڑے یونین ہیں۔ یونین کا مطلب ہوتے ہیں چوکیدار۔ لالا معافی کے ساتھ چھوڑ دیں، معافی چھوڑ دینا۔ اچھا، کیا یونین ہے یار؟ مطلب ہے آپ یقین مانیے آپ کے پلاٹوں کا مسئلہ ادھر ہی پڑا ہے۔ ہائے ہائے، سارے میں نے دیکھ لیا، نہ کیا کریں۔ اچھا ایک منٹ، وہ بھی میں نے آپ کو کہا، بڑی آپ نے اچھی بات کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چوکیدار کی ہوتی ہوئی چوری ہو گیا تو پولیس کا کیا کہنا ہے؟ چوکیدار کو پہلے نہیں پکڑنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو چوکیدار پھر چور ہے۔ اب بات یہ کہ اگر ان کے خلاف FIR ہوتے تو ان یونین کا جو کہتے ہیں سی بی اے والا اسے مخاطب ہو، سی بی اے والا، باقی کا نمبر سی بی اے جو 4 دفعہ سی بی اے ہے۔ یہ لوگ آج تو بھرتی نہیں ہے، یہ 20 سال سے بھرتی تھے، ان کا یہ سیٹلمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ بورڈ ممبران کے ساتھ باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہیں، آپ کے بقول آپ کا، ہم بھی شہر میں رہ رہے، 20 سال سے پلاٹ نہیں مل رہے، 20 سال کے بعد لوگ نوکری سے نکل رہے، ان کے اوپر FIR ہو رہے، تو پھر ان کے درجنوں لوگ اپنا اس کام میں ملوث ہیں، ان کے خلاف تو کوئی FIR نہیں ہوا۔ چینلوں پر بڑے چلے کہ سی بی اے نے ہزاروں لوگوں کو غلط پروموشن کام کیا، لیکن ان کے خلاف کچھ، کیونکہ ان کے اپنے عزیز رشتہ دار بات دوسری طرف جا رہے۔ بات یہ ہے میرے بھائی، میں نے اصل معلومات جو دینے ان لوگوں کے خلاف جب بات ہوا تھا، نمبر 1 تو بات یہ کہ میں کہتا ہوں کہ ان لوگ، ایک بندہ روٹی روزی کے لیے درخواست دے کہ مجھے نوکر کراؤ، اب ان کا جرم کیا ہوگا؟ یا مثال کہ ان کو میٹرک وتھ سائنس چاہیے، ان کو آرٹس میں ہوگا، یا میٹرک چاہیے، میٹرک نہیں ہوگا، 8 ہوگا۔ اب مالی کا، چوکیدار کا، سکوٹی گارڈ کا، ڈرائیور کا لائسنس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مالی چوکیدار ڈرائیور بھی نکلے ہیں، سارے بےتاش ادھر ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس نے حکومت پاکستان کو کوئی مالی نقصان دیا تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ جو پاکستان کا سرزمین ہے یہ ہمارا ماں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بڑا عزت دیا۔ لیکن چوکیدار مالی نے کیا بے عزادگی کیا؟ پھر آتا ہوں ادھر، ان کو آلریڈی ان تمام لوگوں کو ان کی انکوائری باقاعدہ طور ڈپارٹمنٹل ہو چکا تھا، ان کو پنشمنٹ مل چکا تھا۔ کسی کو 1 سٹیپ ڈاؤن کیا، کسی کو 2 سٹیپ ڈاؤن کیا، کسی کا ایگریمنٹ بند کیا، کسی کی تنخواہ، یہ نے میں جہاں تک میں نے ٹریڈ یونین کیا اور مجھے معلومات ہے، سی ڈی اے کا 3 رول ہے، رول 1992، رول 1985، رول 2002۔ ان کے لیے کسی نے ایک رول بھی نہیں پڑھا ہے۔ 1992 کے رول میں یہ باقاعدہ طور پر کلاس موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو ایک ہی دفعہ کوئی پنشمنٹ مل جائے تو اس کو ایک ہی کیس میں 2 دفعہ پنشمنٹ نہیں مل سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اس انکوائری جو انہوں نے کیا تھا وہ عوامی کیا تھا۔ پھر بات یہ لوگ خود بخود تو بھرتی نہیں تھی، محکمے کا کوئی رول ریگولیشن ہے، ہمارا تمام بھرتی، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں، سی ڈی اے کے بعد تر ڈائریکٹریٹ ہے، بندہ بھرتی ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں، یا بندہ بھرتی ہوتے ہیں مینٹیننس میں، یا بندہ ہوتے ہیں روڈ میں۔ اس کا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی HRD ہے۔ HRD کے پڑھے لکھے زبردار لوگ چیئرمین صاحب کے ناک کے نیچے بیٹھا ہوتے ہیں، ممبر ایڈمن کے
आग के नीचे बैठा होते हैं। वो पढ़े लिखे लोग इनके कागजात देखते हैं, वो उनको जनाब वो सर्टिफिकेटें देखते हैं और उनको भर्ती करते हैं। अच्छा, उनके ऊपर कोई माली बेजाब्तगी, कोई चोरी चकारी, कोई नुकसान, कोई चीज नहीं है, लेकिन उनका ये है कि उनका कागज का रिक्वायरमेंट कुछ और था और उन्होंने कुछ और किया। अच्छा, उसके बाद पनिशमेंट मिल गया। भाई मैं कहता हूँ कि आदमी 5 नंबर स्केल में मुलाजिम है, अगर वो 5 का काबिल नहीं है, बेशक महकमा उसको 1 में लिया है। अगर वो 12 नंबर स्केल में भर्ती है और 12 ठीक नहीं तो 6 में लाओ, 7 में लाओ। लेकिन इस वक्त बेरोजगारी है, मुल्क में लगा और हुकूमत के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। चेयरमैन सीडीएस से हम हाथ जोड़ के दरखास्त करते हैं कि आपके लिए देखो हमने ये दुनिया नहीं लाला माफी बस ये सुनो, कहने उस खानदान के लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं, खानदान सारे सब लोगों के हैं ना, लेकिन अब मैं वही करूँ, हाँ उनमें से कोई कसूर, अगर पटवारी लोग हैं, अगर पटवारी का थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा होते हैं, अगर पटवारी है उनके साथ कोई है तो उसके आगे, लेकिन मैं कहता हूँ जो चौकीदार, जो माली, जो गरीब लोग हैं, दूसरा उनको ये मौका देना चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर है, एकदम अचानक उनके सिर पर एक पहाड़ गिराना, उनके पीछे खानदान, माँ बहन भाई, तनख्वाह, बेरोजगारी, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों का बिलों को छोड़े इस मुद्दे पे आए। अच्छा, मैं असल बात पे ये आता हूँ कि इस मुल्क में हमने बड़े बड़े सोसाइटियों में तबाही बर्बादी कर दिया। इस महकमे के अंदर ऐसे ऐसे अफसर गुजरे, मैं आपको क्या बताऊं, बुरी बात है कि उन्होंने अरबों का गपली किया। ठीक है, नजर आ रहा है, किसको नजर आ रहा है? अच्छा, सड़कों के टेकों में हुआ, पुलों का टेकों में हुआ, कुछ हुआ है। मैं कहता हूँ दुनिया के बहुत कुछ होगा, उनको तो कुछ सजा नहीं मिले। एफआईआर ने उसको पकड़े, लोगों ने पकड़े, लेकिन इन गरीबों का कोई वकील नहीं था, इनका कोई तरीका नहीं था। दूसरा, इनके साथ यूनियन उस तरीके से यूनियन होता है, एक बाढ़ चौकीदार, क्योंकि इनका काम था। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आओ सीबीआई वालों, तुमने इनके लिए वो आवाज क्यों नहीं उठाया, उनके लिए वो रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया, उनके लिए वो वकील क्यों नहीं किया, उनको मौके क्यों नहीं दिया। एनआरसी उसके लिए होता है, उसके पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर है, उसके सामने हमारा लॉ डायरेक्टरेट है, उनके पास केस भेज दो, एनआरसी में केस कराओ, पब्लिक सर्विस कमीशन से कराओ, उनका कोई तवर तरीका कराओ, उनको कोई मौका दो। अब अचानक जनाब एफआईआर से कागज आ गया और मानोहान किसी ने नहीं किया और गरीबों पर, मैं खुदा गवाह में से एक नहीं जानता, टेलीफोन मुझे बड़े लोग करते हैं, लेकिन हमारा रब गवाह है, सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत, बासियत मुसलमान। और मैं फिर कहता हूं कि मेरा सीडीए चेयरमैन का या मेरा बोर्ड का या मेरा हुकूमत का शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगा, शान में इजाफा होगा कि उनके साथ नरमी वाला मामला करे। मामला ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, नरमी वाला मामला करे और उनको कम से कम बेरोजगार न करे। मामला पता है क्या, और इनको ये कोर्ट कचहरी वाला चक्रों में न डाले चीफ आई। और मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि आपने और मैंने उसने ढकनों वाला किया है ना? जी बिल्कुल किया है। हाँ, अब मामला यह है कि किसी बंदे को नजर नहीं आता, सीडीए के बंदे को उस्मान पे उड़ते हैं कि जिनकी ड्यूटी है उनको नजर नहीं आता। वो भाई बार अफसर निकलता नहीं। सुनो, सीडीए के गाड़ी, मैं वही बात कर रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं ना। आप चेयरमैन साहब से बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल। मामला ये है कि भाईजान, ये ग्रेट वाई से ऊपर होता है काम। जी बिल्कुल, नीचे कोई बेईमानी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। समझे ना बात? हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रही बात आपके, मैं 3 यूनियन आपका देखा है, चौथा भी देखा है। बिल्कुल सही है। अफसरों का भी देखा है। बिल्कुल सही है। अल्लाह के वास्ते यार, मेरे कान बोले हो गए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, झंडे और पता नहीं कितने कितने पोस्टर लगे होंगे। पहली बात यह है कि सेंट्री वर्कर्सों से इनसे वो गैती बेलचा नहीं सटवा सके। यार 3 यूनियन आपकी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब 2-4 खबरें लगाई हैं कि यार ये क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो देखें, मामला ये है कि हम खुद भी कसूरवार हैं ना, कोई शक नहीं है इसमें। ये है लाला, मैं माजरत के साथ कहता हूं, यकीन मानिए, ऐसे लोग हैं आपके सीडीए में, मतलब गार्ड ऐसे हैं, 3-3 लाख रुपए का, 4-4 लाख रुपए के मोबाइल रखे हैं। क्यों रखे हैं? बिल्कुल, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? 100% सही कह रहे हैं। नंबर 2, वो किसके सिर पे करते हैं? हमारा पंजाबी में मिसाल है ना, मत जोर देती है किले के जोर पर। आपका भी ये समझ आई? बिल्कुल 100%। जब पीछे अफसर ही कोई बेईमान बैठा हुआ हो तो आगे फिर क्या होता है? और ये हमारा, आपने बिल्कुल सुथरा बात किया। आज यूनियन वो काम नहीं करते
जब कोई ताना सुनो, जब यूनियन अगर ये इनके अपना जाति मैं लाला मैं एक लफ्ज मैं किसी को अगर उन किसी यूनियन का कोई जाति उदादार या कोई रिश्तेदार या कोई होगा ना, इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा जुलूस, इतना आगे पीछे, बस बहुत प्रेशर, इन 58 के लिए अभी तक किसी सर, मेरी बात सुने, आप और मैं पहला मेरी बात सुने, मैं और किसी को नहीं कहता, अमानुल्लाह की तो इस वक्त पोजीशन नहीं है, सीधी बात, बिल्कुल सही है। दूसरी लोगों को उम्मीद थी, क्या नाम है, सीबीआई का, यासीन का, सर, और इज्जत कमाल का, अपोजिशन, इज्जत कमाल ने उन दिनों में तो बड़े हार शार ले के मैं ये करूंगा। देखें, जो लीडर होता है वो आम दिनों में भी अवाम के सामने होता है। बिल्कुल सही, मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नहीं कि बस दफ्तर मिल गया, प्राडो मिल गया, डबल केबल मिल गया तो ठीक। लेकिन मैं एक अर्ज करूं, क्योंकि कैमरा लगा हुआ, हमने गलत बात नहीं करनी। नंबर 1 तो मैं उसकी तंजीम का सरफरोश आला हूं, आपके सामने आए हो ना? हाँ बिल्कुल, बैठा हूं। नंबर 1 एक नुमाइंदगी हो गया, मैंने बाकायदा उससे पूछा भी है, तो क्या हम पाबंद है, डिसिप्लिन है ना, कि भाई मुझे नवाज शौकी साहब ने कॉल किया तो मैं जा रहा हूं, उसने मुझे कहा बिल्कुल आपको इजाजत है, हमें नुमाइंदगी करने अपना आवाम का। 2, अब सीबीआई वाला से पहला सीबीआई का है, अगर हम सीबीआई से पहला आवाज उठाते हैं ना तो वो बुरा मायानात है कि भाई मैंडेट मेरे पास है, बार बार जोर दे के कह रहे, तो सारा पोजीशन का मकसद क्या है? सुनो मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी वो मिस्टर स्टे साहब है, उसका मैंने नाम रखा मिस्टर स्टे, मिस्टर स्टे, मिस्टर स्टे, वो जो मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है, अच्छा, चलो साहब की बात कर रहे हैं। वो मिस्टर स्टे, मैं मिस्टर स्टे से पूछता हूं कि अगर आपका अपना कोई होता तो अभी मिस्टर स्टे तुमने कब का स्टे लिया होता, ठीक है? तुमने लाला वैसे एक बात अपने मुखालिफ के ऊपर तुम मानो फौरन लेते, लेकिन बात ये, मैं लाला मेरी बात सुने, मेरे स्टे ने अभी तक बात नहीं किया, मिस्टर स्टे को चाहिए कि वो चेयरमैन के पास जाए, बोर्ड मेंबर। मेरी बात सुने लाला, मेरी बात सुने, आप नाम ले सकते हो यार, ये जो है ना, ये ऐसे वैसे एंगल मैंने चैनल पे नहीं, मैं कोई नहीं, अब नहीं, बात और है ना लाला, उसमें ये है कि आप नाम लो, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत अभी करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे चलो मैं चुनाव ठीक है, मोहम्मद यासीन साहब कहो ना, क्योंकि मैंने चूंकि ऑलरेडी तकरीर में कहा, क्योंकि उसने सैकड़ों स्टे लोगों के खिलाफ लिया ना, ये जो अभी मौजूदा हमारा प्लाट रोका है, उस पर भी चौधरी यासीन के दामाद ने स्टे लिया, इसके रिश्तेदारों ने स्टे लिया, तो मैं तब उसका नाम मिस्टर स्टे रखे कि गरीबों को तुमने तबाह बर्बाद कर दिया, तो मेहरबानी करो मिस्टर स्टे जो है ना, ये काम छोड़ दो, ये स्टे में वाला काम ना करो, क्योंकि तू अपना मतलब की ले लेते, वो कहते आंतों के लगा हुआ दांत से फिर खोलना पड़ता है, ठीक है? अभी इसी जगह पर मैंने कहा कि प्लाट नहीं मिलेगा, आपने भी गिला किया। हाँ, वो आपने कहा था, बिल्कुल सही बात है, चलो वजह यही है, बिल्कुल नहीं है, मुझे शक नहीं है। आज मेंबर साहब ने आज इधर डिले टेक्टेसिस को बोलते हैं, पहली बात तो लाला वो दूसरी साइड पे चला जाएगा मामला, उस पे ना हुआ तो एक दिन चलो हम कहते हैं, वो कहते हैं दे रहा है दुरुस्त है, चलो अल्लाह करे अब उस पे आ जाए, इन गरीबों का कोई मदद करे और उसका राइट बनते आग बनते, आप आग बजाना है, मैं आपके साथ हूँ, अपोजिशन और सीबीआई का दोनों का आग बनते कि भाई इसके लिए आवाज होता है। दूसरा, हमारा आपस में कोई दुश्मनी नहीं, बिल्कुल सही बात, चौधरी यासीन हमारा भाई है, हमें बताए, आपके चैनल के वसातत से उसको कह रहा हूँ कि जब उसको जरूरत होगा, लाला इज्जत खान पूरा का पूरा अपोजिशन ले आऊंगा, आप भी करते हैं, सारा अपोजिशन ले आऊंगा, आप भी करते हैं, मजदूरों के लिए, प्लाट के लिए मेरा ड्यूटी है, इसके पीछे खड़ा होगा, इसको आगे करेंगे, बड़ा भाई बनाएंगे, सीबीआई तस्लीम करेंगे, लेकिन प्लाट के लिए आवाज उठाओ, इज्जत कमाल भी ले आऊंगा, उमानुल्लाह खान भी ले आऊंगा, मैं भी खड़ा हूंगा, चैनल के वसातत को करूं, लेकिन हमें क्या वुजू करना पड़ेगा, मस्जिद जाना होगा और कल कुरान पे यात्रा करना होगा, हम सिर्फ मजदूर के खातिर बात करेंगे, अपना दुकान चमकाने नहीं करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। अजान शाम का शुरू हो गया, माफी चाहता हूँ कि हम चौधरी यासीन को बड़ा मानेंगे, सीबीआई मानेंगे, हम दोनों यूनियन के पीछे खड़े होंगे, लेकिन मेहरबानी। तो नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, कमेंट्स में जरूर बताना, नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे।